गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. कसे आहेत पुणेकर? मजेत? आज सगळ्यांच्या चेहऱ्यांवरती मला स्माईल दिसते. थँक्यू, तुम्ही LP हॉलिडेजच्या प्रोग्रामसाठी इथपर्यंत आलात आपला किमती वेळ काढून. तर मी तुमच्या सर्वांचं एक स्वागत करतो LP हॉलिडेजतर्फे. थँक्यू फॉर कमिंग. आपण भरपूर सारे टूर बघतो. एक व्हिएतनाम आहे, युरोप आहे. तर सगळ्यांना करायची इच्छा असते, मिडल क्लास असो या कोणी मोठा व्यक्ती, बरोबर. तर आपण त्यांना गाईड करतो की या प्राइसिंगमध्ये आपण इथपर्यंत जाऊ शकतो, त्या प्राइसिंगमध्ये आपण ही टूर करू शकतो. काही असे पण असतात ज्यांना टूर आवडतो सुद्धा, काही लोकांना टूर आवडत सुद्धा नाही. मग त्या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण सगळे जे एजंट्स आहोत, पुणेकर B2B एजंट्स, त्या सगळ्या गोष्टीसाठी पुढाकार घेतात. मग त्यासाठीच आपण इकडे जमलेलो आहोत की आपला जो बिझनेस आहे, आपला जो व्यवसाय आहे, तो आपण पुढे कसा वाढवायचा आहे, त्याबद्दल आपण इथे थोडीशी माहिती कलेक्ट करूया. एक दोन काही व्हिडिओज आहेत माझ्याकडे आमच्या टूरचे, ते आपण एक व्हिडिओ प्ले करून बघूया की कसा आहे तो व्हिडिओ. This is Gaurang Coming from? Delhi. Ronak from Hyderabad, LBO Zindabad. Right now we're in Kemi, Finland. Enjoying it? Okay. How's your tour? It's going superb. Everything is awesome till now. Hi, myself Mohammad Ramesh, coming from Chennai, India. I'm very much happy to be with LP Holidays. So Nazir, our tour manager, is awesome, a good friend. We are really enjoying in Stockholm, Sweden. LP is doing very good. Nasir bhai is very positive, very cooperative. Train food સારું મળે છે. મળી જાય છે, બધું સરસ મળી જાય છે. અમે જે પણ ડિમાન્ડ કરીએ છીએ બધું મળી જાય છે. Thank you very much for your support. मी नितीन अहिरे आणि मी हैदराबादहून आहे. इथे आम्ही LPO टूर बरोबर आलेलो आहे. टूर खूप छान चालली आहे आणि त्याच्यात स्पेशालिटी म्हणजे जेवण खूप छान आहे आणि आम्ही ऑलमोस्ट सर्व स्पॉट जे जे लिहिलेले आहेत ते सगळं आम्ही कव्हर करतोय. एकंदरीत टूर खूप सुंदर चालली आहे प्रमाणे सगळं व्यवस्थित होत आहे. अगदी खूपच छान आहे. आणि स्वित्झर्लंड आणि पॅरिस खूप ब्युटिफुल आहे. थँक्यू. हम लोग बर्लिन में हैं और क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं. मस्त, एकदम शानदार, मज़ा आ रहा है. बहुत कोऑपरेटिव हैं वो. यस, एकदम एकदम शानदार. My name is Varun. I came from Delhi. We are at Stockholm now with LPO tour. We have Nasir bhai who have helped us everywhere and being very frank, very open. Best tour. I'm AP Ganesan from Chennai. This is the first time we travel with the LPO. The accommodation, hotel accommodation arrangements are very good. Food also very good. Indian restaurant arrangements also very good. Tour manager is a kind person. He is organizing very well. Thank you very much. Thank you. Hi, I'm Charu and I'm from Delhi. I booked my first solo trip with LPO. Earlier I was a bit scared, but after coming to this trip, it was a wonderful experience. My tour guide Rameshwari was so great. Right now we are in Switzerland and this is our second last day, but still we are enjoying a lot. The services provided by this group was wonderful and I'm totally satisfied with it. The food was amazing. I was never expecting to get Indian food in Europe. So it is a wonderful experience with LPO. Thank you so much. Hi, my name is Karthik. I'm Sneha. We came on our anniversary honeymoon trip and we came with Nasir sir. We are covering Paris, Amsterdam, Belgium, Germany right now. Next we're going to Switzerland. It's been very helpful and we're really liking the trip and his company as well. I'm Vinisha Datta. I'm from Kolkata and this has been my first trip with LPO Holidays. I came along with my parents and it has been a wonderful journey. And our tour guide has been wonderful. She has been very caring and took care of all of us. The food has been very delicious. Harsha ma'am has been the best tour guide and she has also taken care of all our needs as well. Thank you. तर असे भरपूर असे 30,000च्या वर आपले गेस्ट आहेत पुरे ऑल ओव्हर इंडियामध्ये.
जे आपल्या LPO बरोबर जाऊन आलेले आहेत, त्यांचा हा व्हिडिओ जो तुम्ही आता बघितला, जे काही ठराविक आहेत जे ऑलरेडी जाऊन आले आहेत, जे आता काही ते मध्ये सुद्धा बसले आहेत, ज्यांनी 2दा-3दा बुकिंग केलेली आहे, 2-2 वर्षासाठी, 3-3 वर्षानंतरसाठी. बरोबर ना विकास सर? तर हाच असतो अनुभव. अगर एकदा तुम्ही टूर करता, त्या टूरबद्दल तुम्हाला जे गाईड करतात आमचे एजंट्स आहेत, B2B एजंट्स, ते तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीत, सगळ्या गोष्टींमध्ये, विजाबद्दल, ऑपरेशनबद्दल, तिकिटिंगबद्दल सगळ्या गोष्टी प्रनाऊन्स करतात. बरोबर आहे? मग सुरुवातीला ज्यांनी प्रवास केला त्यांचा तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघितलाच आहेत. तसंच आता माझी जो B2B टीम आहे आमच्या कंपनीची, LPO हॉलिडेजची, त्यांना मी ते स्वतः सादर करतो, त्यांना बोलवतो इकडे प्रत्यक्ष, की त्यांची आणि तुमची भेट व्हावी. सगळ्या गोष्टीत तुमचे काही प्रश्न असतील त्यांच्या विरुद्ध, की तुम्हाला कुठल्या गोष्टी कळत नसतील, तर तुम्ही त्यांना डायरेक्टली विचारू शकता. तर अगोदर मी बोलवतो आमचे डायरेक्टर बाय इंडिया एशिया मिडल ईस्ट, मिस्टर मोहम्मद जाफर शेख. Warm welcome to all of you, and thank you very much for joining us this evening. My name is Jafar Sheikh. I've joined this company. It's been a while, and I'm taking care of B2B vertical here. Prior to this, I've been working for several organization. Most of the agents, I'm sure they must be knowing me, and few of them, for them will be new face. So I've worked for Akbar Holidays, Singapore Tourism Board, Abacus, which is now Sabre, Saltus, which is now Otila now, and now I'm heading the entire sales and marketing for LPO Holidays, and taking care of B2B vertical. So I believe everyone have got the bag of LPO. Please, can you, everyone can please take it out, this yellow book. I believe few of them must have gone through it. Before introducing my team to all of you, I just want to take you to glance of this book. This is the B2B book which we have designed, and this has graduate packages. Why I'm saying graduate packages? Because there will be clients who have already explored destinations like Dubai, Vietnam, Thailand, and more. Now they had been graduate and they wish to explore destinations like Europe, Japan, and more. See, coming back to LPO USP, our USP stand on 3 components. First is pricing. Pricing, if you go through these packages, if you see, all the pricings are very affordable. All the pricings are very affordable, so we are making every traveler for accessible. Second is services, which we have our in-house team for be it visa team, operation team, contacting team. So we have all the team members internally. The third important component is payment. We accept payment in all mode, even in cash, to make it more convenient. So I welcome all my team members, Mr. Waid, Mr. Junaid, Mr. Bisham, Danish, Mr. Charu Datta, Mr. Govinda. We could not call all the Pan-India team due to short notice. So these are the sales team which are taking care. Charu Datta is taking care of Pune, and you guys must be knowing him. He is the one who is taking care of Pune market. Okay. Waid is taking care of Pan India, is a sales head. And Mr. Danish is taking care of our UP, is a state head for UP. Govinda is our city manager. He take care of Madhya Pradesh market. We have Junaid, who take care of Mumbai, the financial capital of India. He take care of that market. Then we have Bisham,
We have Bisham, who take care of sales and operation. He will be the one point of contact every time. He will be available for you people. On that note, thank you very much once again. I look forward to collaborate with each one of you. Thank you so much. तर तुम्ही बघितली आज आपली B2B टीम. ह्यांचं काम फक्त प्रोडक्ट विकायचं नाही आहे. प्रोडक्टबद्दल जे प्रॉपर नॉलेज तुम्हाला प्रोव्हाइड करतात, जसं तुम्ही आता व्हिडिओ बघितला, किती हॅपी कस्टमर्स आहेत आमच्याकडे. तसे त्यांच्यातले काही 2-3 इथे उपस्थित पण आहेत, तर मी त्यांनाही बोलवायचं आहे. प्रथम मी बोलवेन विकास सरांना, ते स्टेजवर येऊन आपल्या LP हॉलिडेजबद्दल 2 गोष्टी सादर करणे. Hello everyone, this is Vikas Vajpayee. I'm staying in Aund, Pune. Thank you dear for calling me here. Thank you Sushil and Agarwal sir for inviting me at here. I am doing travel with LPO last 2 to 3 years and covering 2 to 3 destination. Also booked my Northern Lights, my dream project in 2 years advance. मतलब शायद मुझे नहीं लगता यहाँ पे हॉल में बैठ के किसी ने 2 साल पहले 3 साल पहले प्लान किया हो और बुक किया हो. एंड इट्स ऑल हैपनिंग ड्यू टू सुशील. बिकॉज ऑफ डैट लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर कि सर 2 साल पहले हम प्लान करेंगे तो प्राइसिंग में डिफेक्ट हो जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा. बट सुशील डिड एवरीथिंग एंड बुक्ड 2 years बिफोर. आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम LPO मुझे सब लोग जानते ही होंगे. एंड मैंने जो तुर्की किया है, अभी ग्रीस किया रिसेंटली, सेंट्रोनी वगैरह, क्रोशिया, एवरीथिंग. द टूर वॉज अल्टीमेट. अल्टीमेट मीन्स अल्टीमेट. सबसे पहले मैंने LPO के साथ तुर्की किया था, टर्की. एंड दैट टाइम आई डोंट नो द एवनी वन. बस मैंने एक रैंडम ऑनलाइन सर्च किया, मुझे LPO मिला. कुछ लोगों से मेरी इनिशियल स्टेज पे बात हुई. आई रिमेंबर द सम नेम लाइक सना, नम्रता एक्सेट्रा. एंड बहुत पोलाइटली एंड बड़े आसानी से वो बुक हुआ और मैंने टर्की किया. माई स्टे वॉज वंडरफुल. जितने भी होटल हमने करीब 11-12 दिन टर्की में निकाले थे. स्टे वॉज वंडरफुल, फूड वॉज वंडरफुल. आई एम द वेजिटेरियन, थोड़ा सा दिक्कत हुआ मुझे उसका फूड का. बट ओवरऑल जितने भी गेस्ट थे सबने बहुत इन्जॉय किया था हमारा टर्की ट्रिप. एंड उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट ट्रिप बुक किया, वो किया. अभी मेरा ये नॉर्दर्न लाइट्स बुक है जो मैं नवंबर में करूँगा. डेट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड बट मे बी जल्दी ही हमारे सामने आएंगी. तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, मींस वेरी गुड. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए. एंड थैंक यू सुशील, आपके साथ मुझे बहुत मज़ा आया ट्रिप करने में. इनफैक्ट पूरे LPO की टीम के साथ. मैं कुछ सबके नाम तो नहीं ले सकता, बट योर टीम वॉज वंडरफुल, मीन्स वंडरफुल. And please keep it in future. Thank you everyone. नेक्स्ट आहेत जोशना मॅडम. 2 मिनटं तुम्ही स्टेजवर येऊन जरा आपलं LP हॉलिडेजबद्दल थोडंसं बोलणं करायचं आहे. प्लीज वेलकम. मी ज्योत्स्ना बोधे, मी सातारहून आहे आणि आम्ही LPO बरोबर व्हिएतनाम टूर केली आणि ती इतकी सुंदर झाली. जेवण वगैरे पण छान होतं आणि सगळं म्हणजे जे आमचे टूर मॅनेजर होते ते पण खूप छान होते. आणि आता आम्ही बुक केलं आहे ते जपान, ते आत्ता आमचं 8 एप्रिलला आहे. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट आमचे गेस्ट आहेत अनिल सर. अनिल सर, मी यांना रिक्वेस्ट करतो की प्लीज स्टेजवर येऊन 2 शब्द आमच्या LP हॉलिडेजबद्दल थोडं बोलायचं आहे. गुड इव्हिनिंग, नमस्कार सगळ्यांना. मी अनिल ढोले, प्रॉपर सातारा, कोरेगाव. मागच्याच वर्षी मी युरोप टूर केला LPO सोबत. खूप कमी वेळामध्ये जी सर्व्हिस भेटली आम्हाला, म्हणजे 15 ते 20 दिवसापूर्वीच आम्ही टूर बुक केला आणि आम्हाला प्रॉपर एक डेट हवी होती. 28 साधारण सप्टेंबर असेल आय मीन. तर त्यांनी एवढ्या फास्टमध्ये आम्हाला ती सर्व्हिस ॲडजस्ट करून दिली की विजा पुण्यामध्ये फुल बुक होता, रश होता खूप. तर त्यांनी आम्हाला
हैदराबादची डेट घेऊन दिली. हैदराबादमधून व्हिजा शेवटच्या 3 दिवसापूर्वी मिळाला. त्यानंतर फ्लाईटचं सुद्धा आम्हाला वाटलं की टेन्शन, आता फ्लाईट ते कसं करणार, कारण सर्व टूर बुक झाला होता 3 दिवसापूर्वी. त्यांनी मग आम्हाला टर्किश एअरलाईन्स बुक करून दिली. आम्ही 2 कपल होतो, पण टूर अतिशय सुंदर झाला अपेक्षेपेक्षा, कारण पहिलाच टूर होता युरोपमध्ये जायचा. बाकी कंट्रीमध्ये भरपूर फिरलेलो होतो, पण युरोपचा एक अनुभव घ्यायचा होता. तर सांगायचं एक विशेष आहे LPO हॉलिडेजचे की टोटल सर्व्हिस अत्यंत चांगली होती. हॉटेल्स बघा एकदम प्रॉपर होते. आम्हाला वाटलं की आता एवढ्या कॉस्ट कटिंग करून त्यांनी टूर दिला आहे इतर कंपनीच्या तुलनेमध्ये 20-30 हजार रुपये कमीने, तर आम्हाला वाटलं काही ना काही ॲडजस्टमेंट होणार, पण तसं काही केलं नाही. त्यांनी खूप चांगले हॉटेल्स दिले, जेवण प्रॉपर दिलं आम्हाला. म्हणजे वाटलं नव्हतं की युरोपमध्ये जाऊन आपल्या भारतीय जेवण एवढ्या चांगल्या पद्धतीने सुद्धा मिळू शकतं. तो एक अनुभव LPOचा एकदम सुंदर आला. आणि आत्ता आम्ही परत युरोप जो राहिलेला पार्ट आहे तो आम्ही आज डिस्कशनच करणार आहोत. पुढची टूर आम्ही LPO सोबत करतो आहे. आणि सरांना एक माझं सांगणं आहे की ॲग्रिकल्चरमध्ये सुद्धा तुम्हाला खूप स्कोप आहे. मी ॲग्रिकल्चरमधून येतो, तर आमच्या खूप अशा MNC कंपन्या आहेत, त्यात सुद्धा लक्ष द्या. मी एका कंपनीला सजेस्ट केलं आहे की त्यांचे एक 16 ते 18 मेंबर आहेत, त्यांना युरोप टूर करायचं आहे. तर तुम्ही थोडं आमच्यासुद्धा क्षेत्रात लक्ष द्या. खूप मोठ्या प्रमाणात टूर अरेंज होत असतात. 200 पासून ते 500 पर्यंत क्वांटिटी असते. आणि सगळ्या बायर, सिजेंटा, BASF अशा MNC कंपनीज असतात. त्यांचे टूर कंटिन्यू वर्षभरात 2 ते 3 असतातच. टॉपर जो सेलर आहे त्यांना, तर त्यातसुद्धा तुम्ही लक्ष दिलं तर अजून खूप तुम्हाला कस्टमर अटॅचमेंट वाढेल. तुमच्या सर्व्हिसबद्दल खूप खूप आभार. फक्त एक हे होतं की ज्यावेळेस तुम्ही युरोपला टूर गाईड देतात त्यावेळेस थोडा यंग पर्सन द्या, कारण जरा वयस्कर असणारा टूर गाईड काय होतं, त्याला अगोदर 4-5 वेळातून पाहिलेला असतो तो युरोप, आणि ज्यावेळेस सर्व्हिस दुसऱ्यांना देतो तेवढ्या पटीत तो सांगू शकत नाही. कारण आम्ही एकदा पहिल्यांदाच जात असतो, दुसरी वेळ जाईल का नाही सांगता येत नाही काय लोकांचं. कारण युरोपला जायचं म्हटलं तर खर्च खूप आहे. फक्त गाईड तेवढा चांगला प्रोव्हाइड करा. बाकी सर्व्हिसच्या बाबतीत एकदम छान. बाकी काही सजेशन नाही. तुम्हा सगळ्यांना मी LPO तर्फे इन्व्हाइट करतो की खरोखर तुम्ही LPOला जॉईन व्हा आणि चांगल्या जो सर्व्हिस म्हणतो आपण त्याचा निश्चित आनंद घ्या. आम्ही सुद्धा आता पुढच्या टूर LPO मार्फत करत आहोत मोठ्या ग्रुपतर्फे. धन्यवाद. थँक्यू LPO. तर हे आहेत आमचे गेस्ट, ज्यांच्याशी तुमचं आता समोरून सगळं काही व्यवस्थित झालेलं आहे. तसे अजून भरपूर काही गेस्ट आहेत जे खूप वेगवेगळ्या सिटीमधनं आहेत. इंदोरमधनं आहेत, हरियाणामधून आहेत, पंजाबमधून आहेत. असे भरपूर असे हॅपी गेस्ट आपल्याकडे आहेत. तर आता तुम्ही इथे एक जमलोत आपण एक कार्यक्रमासाठी, तर आपण त्याच्यामध्ये काही आणखी व्यवस्था आणखी जास्त काय करू शकतो हे मला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे. आता कमीत कमी इथे एक 50-60 पाचशे एजंट असतील, B2B एजंट असतील, तर आणखी आपण त्याच्यामध्ये काय व्यवस्था चांगली करू शकतो. कारण प्रत्यक्ष सगळ्यात जास्त गेस्ट जो खुश असतो त्यांच्या एजंट बरोबर, तर त्यांच्या कुठे काय प्रॉब्लेम्स असतात ते आमच्यापर्यंत कधी लवकर पोचत नाही किंवा B2B लोकांकडे पोचत नाही. एजंटकडे कसं ते वाया फिरून जाणं ते थोडासा प्रॉब्लेम होतो. तर अगर तुमच्यात काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आमचे B2B जे हेड आहेत जफर सर, तुम्ही त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट करू शकता. कोणाचे काही प्रश्न आहेत का? तर प्रत्यक्ष आता 2 मिनिटं नाही लागतील तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला, कारण पूर्ण टीम इथे आता सध्या अवेलेबल आहे. आणखी आमचे गेस्ट आहेत इथे आलेले आहेत, तुषार सर. मी त्यांना विनंती करतो की प्लीज स्टेजवर येऊन त्यांनी LPO हॉलिडेजबद्दल 2 शब्द बोलावेत. प्लीज वेलकम तुषार सर. LPO हॉलिडेज यांच्यासोबत मी एक युरोप ट्रिप केली होती यांच्यासोबत. ऑलमोस्ट 11 डेजची होती ती, 11 डेज अँड 10 नाईट्स, आणि ती फार सुंदर झाली. ॲक्च्युली LPOबद्दल एक सांगायचं म्हणजे LPO म्हणजे मला का बरं आवडली त्याचं एक शॉर्ट उत्तर, LPO इज लाईक लाईव्ह ट्रिप. म्हणजे बेस्ट थिंग असं होतं की आमचे जे मॅनेजर होते, टूर मॅनेजर हेमंत भाई, ते जसे आम्हाला भेटले
आम्ही इथून उतरलो डायरेक्ट पॅरिसला आणि पॅरिसवरून ऑलमोस्ट आम्ही जेनेवाला पोहोचलो रिटर्नमध्ये. तर तिथपर्यंत आमच्यासोबत होते. दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग अबाउट दिस की टूर मॅनेजर इज व्हेरी बेस्ट. आणि मी प्युअर व्हेजिटेरियन आहे. तर हेमंत भाई मला प्रत्येक वेळेस हे सजेस्ट करत होते की दिस इज अ व्हेगन फूड अँड दिस इज व्हेगन रेस्टॉरंट अँड ऑल दॅट थिंग्स. नंतर काही आम्हाला काही क्युरीज असायच्या तर त्यांनी त्या आम्हाला सॉल्व केल्या. आणि बाकी पण असे काही छोटे छोटे इश्यूज होते जे की म्हणजे यांची बॅक ऑफिसची टीम होती की यांचे म्हणजे टूर ॲक्च्युली ते विजा वगैरे जे बनवतात ते समजा 7 दिवस 11 दिवस तुमचा जर पॅकेज असेल तर 2-3 जण एक्स्ट्रा काहीतरी बनवले होते त्यांनी. त्याच्यामुळे तो इथे म्हणजे गुड वन. आणि फार यांना कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि परत नक्कीच आम्ही LPOची सुविधा घेऊ. धन्यवाद सर. आणखी एक मी नाव घ्यायला विसरलो, सॉरी सर. आमचे नंदकुमार साहेब ज्यांनी सध्या आता 9 लोकांची बुकिंग केलेली आहे. लंडन प्लस XP 15 डेज पॅकेज. राईट नंदकुमार सर? प्लीज वेलकम टू स्टेज. माझं नाव नंदकुमार देशमुख. माझ्या ट्रॅव्हल कंपनीचं नाव आहे छत्रपती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. लास्ट 47 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड. मैं फर्स्ट टाइम LPO तरफ से ये यूरोप विद लंदन का टूर अरेंज किया है ग्रुप टूर के लिए. सबसे पहली बात है मैंने इनका नाम कभी सुना नहीं था. मैंने फेसबुक पे इसके ऊपर जो वीडियो दिखा रहे थे ऐसे वीडियो देख के मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया. और आज जो भी कोई काम करता है उसका मार्केटिंग करना मीडिया के हाथ में ज़्यादा है. हम देख के बुक करते, इंक्वायरी नहीं करते. पहले मैं इनका ऑफिस देखने के लिए मुंबई गया कि प्रॉपर ऑफिस है कि नहीं, क्योंकि मैंने इस ट्रैवलिंग में भी बहुत धोखा खा चुका हूँ. तो वो देखा उनका सर्विस कम्युनिकेशन प्रॉपर था, अच्छा सर्विस दिया. जैसे उन्होंने मिस्टर नवलकर है उनको मैंने इनवाइट किया, वो मेरे ऑफिस में आए. वो टाइम पे मेरे पास नियर अबाउट 60 to 70 कस्टमर की इंक्वायरी थी, लेकिन वो आउटपुट नहीं हो सका. अभी मेरा 10 लोगों का ही ग्रुप हो गया क्योंकि कॉस्टिंग प्रॉब्लम भी आता है. फिर इसके बाद में मैंने उनको सजेशन दिया. इनका ग्रुप टीम बहुत बड़ा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, लेकिन क्या होता है बिजनेस में, मैं आपको एक्सपीरियंस के लिए बोलता हूँ, कभी भी किसको कांटेक्ट करना है तो उसको बोलना व्हाट्सअप कॉल मत करो, डायरेक्ट कॉल करो. क्या होता है व्हाट्सअप कॉल में रिकॉर्ड रहता नहीं है. तो इनको मैंने सजेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कॉल करते जाओ. दूसरी इसके उन्होंने माना. मिस्टर नवलकर है, मिस्टर विनायक है, कितनी बार वो कम्युनिकेशन करते प्रॉपर करते. अभी हम लोग क्या कहीं प्रॉब्लम आता है तो डेट में थोड़ा आगे पीछे हमको भी करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजर को भी करना पड़ता है. और ये कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये सर्विस इंडस्ट्री है. इनके सर्विस के ऊपर अपना बिजनेस चलता है. और मैं सब B2B बिजनेस वालों को सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा काम करो कि कस्टमर का ट्रैवल कंपनी के ऊपर से भरोसा नहीं उठना चाहिए. वेरी ट्रू. क्या है, और आजकल जो ये ग्लोबलाइजेशन जो आया, मीडिया है, ये गूगल आया, लोग सर्च करते हैं, अपने आप कुछ काम करते हैं, फिर धोखा खाते हैं. तो किसी का भी गाइड, ये बिजनेस सबसे दुनिया में ऐसा बिजनेस है कि हर एक को रोजगार मिलता है इसमें. इसके एक चेन है पूरा. अगर हम कांटेक्ट करते हैं इसमें टेलीफोन या पहले तो STD बूथ थे, फ़ोन वाला आ गया, होटल वाला, गाड़ी वाला आ गया, टैक्सी वाला आ गया, एयर टिकटिंग वाला है, मतलब ये पूरा चेन है. ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही अपना ये टूर सक्सेस होता है. इसलिए बोलते हैं दुनिया गोल है, घूम के जाओ फिर आप वापस वहीं आओगे. तो बाकी LPO को तो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहा हूँ. अभी जैसे आप लोगों ने इनके बारे में बोला, वीडियो मैंने देखा, तो थोड़ा मेरा अभी कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया. तो इसकी वजह से, और ये जिम्मेदारी उनकी भी है और मेरी भी है, और मुझे भी समझना चाहिए कि मैंने कितना पैसा दिया और मैं कितना एक्सेप्ट कर रहा हूँ. तो मेरी भी सोच नैरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी ब्रॉड भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले की थैली फट जाए. तो मेरा कुछ इसमें कुछ सजेशन कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने इनवाइट किया. तो LPO की तरफ से टॉप टू बॉटम जो इनके चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, लास्ट इनका ऑफिस बॉय तक, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ या उनके धन्यवाद देता हूँ कि ग्रुप है, ग्रुप रखो, ये चेन टूटनी नहीं चाहिए और लोगों का इस से भरोसा नहीं उठना चाहिए. थँक यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सर. आता आपले नेक्स्ट गेस्ट आहेत गोरक्षाजी. मी यांना विनंती करतो प्लीज स्टेजवर येऊन त्यांनी LPO हॉलिडेजबद्दल 2 शब्द इथे मांडावेत. हॅलो, नमस्कार. मी प्राध्यापक गोरक्ष रामचंद्र धनावळे, पुण्यातनंच बिलॉंग करतो आहे.
मी आत्ता नोव्हेंबरमध्ये LPO मार्फत व्हिएतनाम आणि कंबोडिया अशी ट्रिप केलेली आहे. आमचा जवळजवळ 12 ते 13 लोकांचा ग्रुप आहे. त्या ग्रुपमार्फत आम्ही प्रत्येक वर्षी फिरत असतो. आमच्या ग्रुपचं नाव आहे भटकंती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स असं. आणि प्रत्येक वेळेस थोडासा स्वतः काहीतरी करण्याची मनामध्ये इच्छा असते, फिरण्याची आवड आहे. त्यामुळे मी बऱ्यापैकी फिरतो आहे, महाराष्ट्रात फिरलो आहे, परदेशात फिरलो आहे, पण स्वतः ऑर्गनाईज करून ट्रिप केलेली आहेत. फर्स्ट टाईम मी LPO मार्फत ही परदेशातली ट्रिप केलेली आहे. LPO हे नाव मी गेले 5 ते 6 वर्ष इंटरनेटवर सर्च करत असताना मला नेहमी दिसायचं. आणि आत्ताही मी व्हिएतनाम आणि कंबोडियाची ट्रिप ऑर्गनाईज करत असताना मी स्वतःचं माझं बजेट फाइंड आउट केलेलं होतं. त्यानंतर मी LPOकडे अप्रोच झालं आणि मला त्याच रेटमध्ये LPOने उत्तमरित्या ऑर्गनाईज करून दिलेली ट्रिप म्हणजे व्हिएतनाम आणि कंबोडिया. ट्रिप ऑर्गनाईज करत असताना प्रत्येकाला आपल्याला माहिती आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी येतात. आता सरांनी सांगितलं आहे याच्यामध्ये फ्रॉड होण्याचे बरेचसे शक्यता असतात, अडचणी खूप येतात. त्या अडचणीवर मात करता आली पाहिजे हे मी LPOकडून शिकलेलो आहे. कारण मी आत्ता गेल्या नोव्हेंबरमध्ये व्हिएतनाम आणि कंबोडिया अशी ट्रिप यांच्यामार्फत केली. उत्तम ऑर्गनायझेशन होतं, त्याने उत्तम सोय केलेली होती, जेवणाची व्यवस्था उत्तम होती. तरीही काही गोष्टी असतात ह्या मी थोडंसं त्यांना सांगू इच्छितो. मला होचिमिनमध्ये थोडासा यांचा असा प्रॉब्लेम आला की आम्ही ज्या हॉटेलमध्ये गेलो तिथे आमचं बुकिंग नव्हतं. म्हणजे ते बुकिंग थोडंसं डेट काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता, आदल्या दिवस 2 दिवस असं काहीतरी झालेलं होतं. आम्ही इमिजिएट मुंबईला कॉन्टॅक्ट केला आणि विदिन एक 30 मिनिटमध्ये त्यांनी आमची व्यवस्था तिथे केली आणि तो प्रॉब्लेम सॉल्व केला. याच्यासाठी मला खरंच त्यांचं धन्यवाद द्यायचं आहे. आपण परदेशात जात असताना आपल्याला ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात की आपल्याबरोबर कोणतरी असलं पाहिजे. म्हणून आपल्याला LPO हे आपल्या साथीला आहे हे आम्हाला तिथे जाणवलं. म्हणजे एक अर्धा तास फक्त आम्हाला वेट करावं लागला, पण तो प्रॉब्लेम त्यांनी सॉल्व केला. म्हणजे याच्यासाठी मी खरंच त्यांना धन्यवाद देतो. आणि नेहमी मलाही वाटतं की आम्हाला अजून भरपूर काही फिरायचं. युरोप माझ्या डोक्यात आहे. आमचा 15 ते 20 लोकांचा ग्रुप आहे आणि ते करायची इच्छा आहे. या सर्व्हिसमुळं मलाही वाटतं की आपण यांच्याबरोबर पुढच्या ट्रिप्स कराव्यात. यांचं ऑर्गनायझेशन छान आहे. थोडंसं मीही ते आत्ता एक सरांनी माझ्या मित्रांनी सांगितलं की खरंच यांचं ऑफिस मुंबईला आहे का, हे मी स्वतःही ऑब्झर्व केलं. माझे मित्र संजय गायकवाड, आता राजीव गायकवाड आणि टिळेकर इथे आहेत. आम्ही त्यातले संजय गायकवाड आणि आम्ही ठरवलं यांचे ऑफिस मुंबईला खरंच आहे का बघायला पाहिजे. माझं कम्युनिकेशन मला वाटतं हरीश दुरी आणि संचिता आणि मयंक यांच्याशी झालेलं होतं. त्या मुद्द्याने मी त्या पद्धतीने मुंबईला गेलो. त्यांना म्हटलं आम्हाला यायचं आहे. त्यांनी अत्यंत छानपैकी आम्हाला ऑफिस दाखवलं. तिथेच आमचं डिलिंग झालं आणि मी ते फायनल केलं. अतिशय छान आहे. मी सगळ्यांना रिकमेंड करेल की आपण यांच्यामार्फत काही ट्रिप्स करायला पाहिजेत. जेवणाची सोय उत्तम आहे, मॅनेजमेंट उत्तम आहे. कधी काही छोटे मोठे प्रॉब्लेम्स असतात पण ते सॉल्व करू शकतात. हे अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट त्यांच्याकडून आहे. मीही इथून पुढे माझ्या ट्रिप्स यांच्यामार्फत करण्याचा विचार करेल. धन्यवाद. हेलो, मेरा नाम देवेंद्र सिंह तोमर, विशाल न्यूज राष्ट्रीय. मेरा सबसे पहला सवाल ये है LPO से कि बाकी ट्रेवल में और आपके ट्रेवल में क्या अंतर है. और दूसरा सवाल ये है कि जो ट्रेवल आप लेके जाते हैं कस्टमर के लिए मेडिसिन में क्या आपने किया, कुछ बाई चांस कुछ बीमार पड़ता है, कुछ होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है. दूसरा नंबर, सर्दी के मौसम के लिए आपके यहाँ से क्या व्यवस्था है. आपको मेरे जो कंपनी के ओनर है मैं उनको बुलाना चाहूँगा यहाँ पे. मिस्टर सुशील तिब्रेवाल जी. Good evening all of you. Thank you for coming first of all. I am really honored. आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हम सब LPO में. और ये हमारी पहली कोशिश है आप सबके साथ में जुड़ने की और मिलने की यहाँ पर पे. बेसिकली जैसे आपने एक सवाल पूछा कि ट्रैवल एजेंसी में कि आपका फ़र्क क्या है दूसरे पैकेजेस से. ये एक सर्विस इंडस्ट्री है जैसा सर ने कहा अभी. इसके अंदर में
प्रोडक्ट वही होते हैं, जैसे हम लोग एक शर्ट खरीदने जाते हैं, एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, सब लोग वही शर्ट्स देते हैं। कुछ में डिज़ाइन का फ़र्क होता है, कुछ में प्राइस का फ़र्क होता है, कुछ में उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी का डिफरेंस होता है। आज हम जो कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि जो प्रोडक्ट हम दें वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट हो। हर एक जो एक लोगों की डिज़ायर है, ड्रीम है कि हमको आज यूरोप घूमना है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मेरी पूरी जेब खाली हो जाए। जो मैंने इतने सालों से पैसे बचाए हैं वो पैसे पूरे एकदम से एक ही ट्रिप पे ख़त्म हो गए तो मैं आगे अपना जीवन कैसे जीऊँगा। आज ये जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, मैं तकरीबन 25 साल से इसके ऊपर पे वर्क करता रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड और दिस थिंग। ये पर्टिकुलर जो ट्रैवल इंडस्ट्री है इसके अंदर में अभी तक मेरा जो नज़रिया रहा है कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर पे लोगों की वर्किंग बहुत कम रही है अभी तक। एयरलाइंस ने कोटेशन दे दिया 75,000 का या 80,000 का फ़्लाइट का, वो ले लिया। वीज़ा ने दे दिया, होटल ने दे दिया। कोई भी ये कोशिश नहीं करता है कि बल्क बाइंग मैं कैसे करूं। मेजर प्ले हर एक जगह पे ये निगोशिएशन होता है, ये कॉमन चीज़ है, हम लोग हर इंडस्ट्री में देखते हैं, सब लोग करते हैं। ये जो निगोशिएशन होती है बल्क क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर पे। आज एलपीओ साल के 12 महीने पर्टिकुलर हर टूर ऑपरेट करता है। देयर इज़ नो ब्रेकेज ऑफ एनी टूर इन एनी मंथ। अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस बैक टू बैक हमारी जो कोचेस लीज होती है, कोच जो कंपनीज के साथ में हम लोग लीज करते हैं, हम 6-6 महीने का लीज करते हैं। हम एक ट्रिप के लिए नहीं लेते। एक ट्रिप के लिए अगर आप यूरोप में कोच लोगे 800 से 1200 यूरो पर डे का उनका चार्जेस है। वहीं अगर मैं 6 महीने के लिए वो कंपनी से कोच लेता हूँ वो 20 to 40% का प्राइस डिफरेंस हमको देते हैं। ये प्राइस डिफरेंस बेनिफिट आपके पास में आता है। होटल्स के साथ में हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसका बेनिफिट आपके पास में आता है। हम अपना वही 10% मार्जिन के लेकर के चलते हैं, लेकिन वो 10% आपसे या कस्टमर से नहीं, हम ये पीछे निगोशिएशन करके वो बेनिफिट ला करके उसमें से बनाते हैं। तो डिफरेंस यही है। दूसरी कंपनीज भी ऑपरेट कर रही है, बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा वो लोग मार्केटिंग और सब पे खर्चा करके पैकेज को महंगा कर दे रहे। आपको आपके पास में है सारी प्राइसिंग, अगर आप इसको चेक करेंगे हर प्राइस के अंदर में मैं आपको एक ओपन चैलेंज गारंटी करता हूँ। कहीं पे कोई मैच करता है प्राइस या उससे ऊपर होता है। प्लस जो आपने जैसे अभी आपको इतने जो गेस्ट से बात कराने का कारण यही था कि आपको एक सर्विस क्वालिटी के बारे में एक अंदाज़ा आ जाए, आपको एक वर्किंग सिस्टम के बारे में अंदाज़ा आ जाए। आप सब महानुभाव जो यहाँ पर बैठे हैं, मतलब आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर सब मैं मिलाऊंगा इस इंडस्ट्री में तो मोर देन 100 ईयर्स का है सबका। आज आप लोगों के पास में कनेक्शंस हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आपका नाम पता है, आपका विश्वास पता है। जैसा कि सर ने कहा, उन्होंने कोशिश की पता करने के लिए एलपीओ का ऑफिस है कि नहीं। हर कोई कस्टमर नहीं करता है। हमारे वाजपेयी साहब बहुत शुक्रिया थे, वो उन्होंने हमारी बात से खाली ओके कर दिया, बट नॉट एवरीवन इज़ ओपन। आज वो स्ट्रेंथ आप लोगों के पास में है, वो स्ट्रेंथ और हमारी जो स्ट्रेंथ है कंपनी की, वो स्ट्रेंथ को हम लोग साथ में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई प्रश्न? जे काही कॉस्ट असतात कुठल्या ट्रॅव्हल्सच्या किंवा कुठल्या किमती, कुठलंही असं जे काही सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये असतं त्याच्यावर काय होतं की एक कॉस्ट दिली जाते की बाबा एवढ्या एवढ्या खर्चात आम्ही घेऊन जाऊ, पण त्याच्याखाली जे स्टार मारून काही कंडिशन्स असतात त्या जरा जास्तीच खर्चिक असतात की सामान्य माणसाला वाटतं की आपण एवढ्या कुठेही स्टार नाही आहे बघून घ्या, ते पण स्टार नाही आहेत. आमचे पॅकेज 2 पार्टमध्ये डिवाइडेड असतात. एक आपलं लँड पॅकेज आहे, दुसरं आपलं फ्लाईट विजा आणि टॅक्सेस. फ्लाईट विजा टॅक्सेस हे डिपेंड करतात आपण कधी ते पॅकेज बुक करतो आहे आमच्याबरोबर, तुमचं गॅप किती आहे, 3 महिन्याचं डिस्टन्स आहेत, 6 महिन्याचे आहेत, तर आम्ही पण पुढे निगोशिएट करू शकतो एअरलाईन्स हॉटेल्सबाबत. बस ते 2 पार्टमध्येच आमचे आहेत. ऑप्शनल ॲक्टिव्हिटीज आहेत 3 ॲक्टिव्हिटीज का 2 ॲक्टिव्हिटीज जे लोकांना करायची असतात किंवा नाही करायची असतात, ते आम्ही सर्वांना थोपत नाही की तुम्हाला हे घ्यावीच लागेल.
बस तेवढी ते ऑप्शनल ॲक्टिव्हिटीज आहेत, आपल्याला घ्यायचे आहेत, त्याचे पैसे ऑलरेडी मेन्शन्ड आहेत, दॅट्स इट. काही हिडन कॉस्ट, काही स्टार ॲस्ट्रिक, काही मार्क मी त्याच्यात बिलीव्ह करत नाही. थँक्यू. बिल्कुल. इसमें देखिए दो तरीका है आज की तारीख में. गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ में ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल कंपनीज के साथ में किया है कि अगर हम लोग मेहनत करके बुक कर रहे हैं इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तो उसके ऊपर पे आप पूरा TCS लो कलेक्ट करो. अब कस्टमर को लगता है कि वो पैसा चला गया, वो पैसा उसको लगता है कि मेरी जेब से आउट हो गया, वो नहीं देना चाहता है. अब गवर्नमेंट ने हमको दो प्रिविलेज दिया है, जैसे दूसरी कंपनीज को. मेक माई ट्रिप पे अगर आप बुक करोगे, आपने फ़्लाइट बुक किया, कोई TCS नहीं. आपने इंटरनेशनल होटल बुक किया, कोई TCS नहीं है. आपने बाकी और सर्विसेज वहाँ से ली, वीज़ा वगैरह, कोई TCS नहीं है. वही हमसे अगर वो ले रहा है तो हमको पूरा TCS उसके पास से कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को भरना है. तो इसके अंदर में 2 से 3 प्रोविजंस है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं कि अगर आपको TCS दे करके आपको आपके अकाउंट्स में दिखाना है तो हम आपके बिहाफ पे TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरते हैं. नहीं तो हमारी जो है बिलिंग अलग होती है, होटल्स की अलग होती है, फ़्लाइट्स की अलग होती है, वीज़ा सर्विसेज की अलग होती है, जिसमें इट इज़ नॉट एज अ पैकेज, सो TCS कलेक्टेबल नहीं होता है. अगर आपके पैकेज में आपने TCS ओके किया है, पहले लिया है, तो वो आपके उसमें पैकेज डिटेल में हम क्लियरली लिखते हैं ये आपका TCS अमाउंट है और ये आपको इतना रिफंड आपके ITR में मिलेगा. नहीं, क्योंकि मुझे बोला गया है कि आपको TCS मिल जो बोला गया है, मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि उसमें मेंशन हो. हर एग्जीक्यूटिव को मैं बोल देता हूँ ताकि आपको भी वही दिखे, हमको भी वही दिखे. आप उसमें पढ़ करके आप उसी समय डाउट पुटअप कर सकते हो कि भाई ये मेरा आर्ग्यूमेंट है. जनरली एग्रीमेंट करते हैं ना तो हम लोग डिस्कस करते हैं, पेपर वर्क हम करते ही नहीं है. जो सामने से बात होती है ना उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं. हाँ, इसलिए उसके बाद में अगर आपने कोई रिटर्न में भेज दिया कि इसमें लिखा है, आगे बढ़ने से पहले दिन जिस दिन आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, हमारा जो सिस्टम है, एक गेस्ट है, कस्टमर है, उसने जैसे बुक किया उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है जिसमें अकाउंट्स टीम है, ऑपरेशंस टीम है, फ्लाइट, सब टीम्स उसमें इंक्लूडेड रहती है. आप भी उसमें रहते हो और सबसे ऊपर टॉप पे हम आपके साथ में जो बातचीत हुई है, जो पैकेज नक्की हुआ है, वो उसमें वहाँ पे मेंशन करवाते हैं कि मेरे पैकेज में बात हो गई है कि आपको TCS रिटर्न मिलेगा. हाँ, उसमें लिखा होगा. अगर लिखा होगा नहीं है, मेरी ज़बानी बात हो गई है, लिखा हुआ मैंने देखा नहीं अभी तक. हाँ, एक बार देख लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा और उसके ऊपर पे मैं अपना जवाब दे दूंगा. ठीक है, ओके. Sir, I want to know the criteria and the location of the hotels specifically for the Europe tours. यूरोप के लिए Location and criteria, 3 star, 4 star, what kind of hotels you use? we deal only with 3 star hotels. हम लोग प्रीमियम केवल वियतनाम में 4 स्टार करते हैं, टर्की में 4 and 5 स्टार करते हैं क्योंकि उनका 3 स्टार ग्रेड अच्छा नहीं है. यूरोप 3 स्टार आर वेरी गुड, क्लीन एंड वेरी नाइस होटल्स, प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे. यूरोप की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतनी बड़ी उनके पास में कंट्री है, इतनी जगह है, फिर भी होटल रूम्स बहुत छोटे बनाते हैं. अगर आप लोग पुणेकर्स देखेंगे, आप लोगों का जितना बड़ा बाथरूम होता है उतना बड़ा उनका पूरा रूम होता है. तो ये दिक्कत है वहाँ पे. बट वी यूज़ 3 स्टार होटल्स फॉर यूरोप एंड दीज आर गुड स्टैंडर्ड चेन होटल्स. ऐसे कोई भी नॉर्मल होटल नहीं है जिसने 3 स्टार का अपना लेबल लगा दिया, बट दिस आर गुड फ्रॉम स्टैंडर्ड चेन ऑफ होटल्स. B&B होटल्स हैं, कैंपनाइल ग्रुप है, इस प्रकार के हम लोग होटल्स अच्छी चेन को ही यूज़ करते हैं. दूसरा, यूरोप के अंदर में सिटी के आज जैसे अगर हमने होटल, आप ये समझिए वाशी में लिया, वाशी से हमको घूमने जाना है लोनावाला, वाशी से हमको घूमने जाना है बॉम्बे नरीमन पॉइंट, तो हम ऐसा लोकेशन देखते हैं जिससे सेंट्रलाइज, क्योंकि 3 दिन 4 दिन जो हम हैं तो हमको ट्रैवलिंग के लिए बार बार वहाँ से नरीमन पॉइंट से पूरा हर बार वाशी, हर बार लोनावाला नहीं आना पड़े. तो हमारा जो रहता है मोस्टली एयरपोर्ट के पास में या ऐसी सेंट्रल लोकेशन में होता है जहाँ से हमारा ट्रैवलिंग टाइम बचे एंड वी कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट. भीड़ में, ट्रैफिक में फंस के कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे सिटीज़ के अंदर. जी सर. हाय गाइस, माय नेम इज़ शुभम मंत्री. मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे एयरबीएनबी अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और जितने भी मेरे गेस्ट होते हैं
दे ऑल्सो प्रेफर एयरबीएनबी कंपेयर टू होटल्स, और ये स्पेशली यूरोप और जापान में ज़्यादा होता है, तो इस पे आपका क्या टेक है? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी तक टूरिज़्म बिजनेस के अंदर में, दो प्रकार के लोग हैं जो एक खुद से अपना ऑर्गेनाइज करके जाना चाहते हैं, खुद अपने हिसाब से प्लान करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ डेज, नाइट स्टे वगैरह सब जो है, और उनका एक नज़रिया अलग होता है टूर बनाने का, टूर करने का। दूसरा होता है जो हमको ग्रुप में जाना है, ग्रुप में हमको साथ में पूरी फैसिलिटी चाहिए, हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए। आज आधे लोगों को अगर आप देखोगे वहाँ पे यूरोप में घूमते हुए, गूगल मैप लेकर के ओपन करके ढूंढ रहे होते हैं, अरे ये स्पॉट किधर है, ये बस कहाँ से मिलेगी, ये ट्रेन कौन सी है, वो कैसे जाएंगे, वो वहाँ से कैसे चढ़ूँ, ये गली नहीं मिल रही है, और रात भर उसी बिल्डिंग के आसपास घूम रहे हैं, एयरबीएनबी में ढूंढ रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज दे फेस, बट दे प्रेजेंट एज इफ दो नो दे आर एन्जॉइंग। यहाँ आपको टूर मैनेजर के साथ में पूरा ग्रुप, आपने जैसे देखा अभी सब जो गेस्ट हमारे थे, इन्होंने अपने अपने नए दोस्त बना लिए, नए फैमिलीज बना लिए पैन इंडिया से। द वे दे एन्जॉय, इनको कोई चिंता नहीं है कि मुझे कहाँ उतरना है, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, कौन सा होटल में मेरे को लेना है, इनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं इस बात को, एक ट्रिप करते, दो ट्रिप करते, उसके बाद में उनकी जब मैडम चिल्लाती है, बोलती है बैग लेके ट्रेन में चढ़ो, तो वो अपने आप मना कर देता है, बोला नहीं हम ग्रुप के साथ में जाएंगे। तो आई सी देयर इज़ अ गुड फ्यूचर फॉर ग्रुप टूर्स एंड प्राइवेटली प्रॉपरली प्लान टूर्स बाय गुड एजेंट्स। ऐसा नहीं कि जो मैंने खुद ने ऑनलाइन ढूंढा, बुक कर लिया। तो आई फील दैट्स अ केस। राइट, यही था आपका पॉइंट कि और कुछ जाना था? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन कुछ और था, हाँ, और आपका जवाब वाज लिटिल डिफरेंट, बट दैट्स ओके। आई विल आस्क यू वंस अगेन। माय पॉइंट इज कि जैसे जापान एंड यूरोप में ये जनरली हो रहा है, होटल्स का जो रूम साइज है इज क्वाइट स्मॉल। बिल्कुल। एंड जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट group small in the sense it ranges from 140 square feet to 170 square feet. That's right. Which is a good standard size. It is not that compact एकदम से पूरे, हम लोग वो यूज़ नहीं करते हैं उसके अंदर में। दिस आर कंफर्टेबल। एक डबल बेड होता है, क्वीन साइज बेड होता है या किंग साइज बेड होता है, एक अटैच बाथरूम लेबोरेटरी होती है, उसमें स्टडी टेबल का स्पेस होता है, एंड इट्स कंफर्टेबल स्पेसिंग। ये नहीं है कि एकदम कॉम्पैक्ट वाले, हम वो यूज़ नहीं करते हैं उसके अंदर में, जो ये रहते हैं। हाँ, और एयरबीएनबी का जैसा आपने कहा, होटल्स वगैरह का, वो उनको आज जो दिक्कत है वहाँ पर पे होटल्स की बजाय नाश्ता नहीं मिलता है, वहाँ पर पे उनको एकोमोडेशन इतनी गलियों के अंदर रहती है। दिस आर नॉट मेन एरियाज, मेन लोकेशंस। मेन एरियाज लोकेशंस का जो प्राइस है दैट इज़ एक्सॉर्बिटेंट। अब प्राइसिंग पे तो मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, और जैसे आप लोकेशंस की बात कर रहे हैं, तो मेन एरियाज में भी काफ़ी अच्छे एयरबीएनबीज है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज आई हैव। और यहाँ पे मेन बात ये है, जैसे आपने ग्रुप डिपार्चर का बोला, ग्रुप डिपार्चर में तो एयरबीएनबी ऐसे भी पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल। एयरबीएनबी जनरली यूज्ड बाय कस्टमाइज्ड टूर, राइट? फैमिलीज, कपल्स, कस्टमाइज्ड टूर या फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है। तो उसमें ऐसा होता है 140 से 170 का जो आप साइज बोल रहे हो, कंपेयर टू एशियन कंट्रीज दैट इज वेरी स्मॉल। सो दैट्स व्हाई द पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एशिया, हम बॉम्बे वालों के लिए स्मॉल नहीं है, बहुत बड़ी जगह है वो। दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस फ्रॉम द पीपल आई हैव बीन गेटिंग हु आर ट्रैवलिंग टू दिस कंट्रीज. So that's all I wanted. That trend is there and I don't disagree with it. But जैसे कि आप ये देखते हैं ना कि भाई हमको आगे कहाँ बढ़ना है, हम उस दिशा में देखेंगे। जो दिशा हमारी नहीं है उस दिशा की तरफ देख करके हम क्यों रुके, हम तो आगे बढ़ना है हमको सबको, राइट? जी, that's right. Thank you. Okay. I thank you once again. आज ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के 3 प्रमुख कारण हैं बेसिकली। आप लोग सब ये बिज़नेस के अंदर में हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, आप लोगों को पता है तरीका कैसे करना है बिज़नेस, कितना बिज़नेस करना है।
मैं आपके साथ में कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है थोड़ी, उसके अंदर में आप लोग एक बार देखेंगे तो इट विल बी गुड। हमारी जर्नी शुरू हुई थी 2013 में। हमने बेसिकली शुरू किया था पहले डोमेस्टिक टूर्स से। लद्दाख आज भी है ट्रेंड में, उस समय भी था ट्रेंड, तो हमने वहाँ से शुरुआत की ग्रुप टूर्स ले जाने की। ये एक प्रोसेस को पूरा सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम यही सेम चीज़ दूसरी अलग अलग सिटीज़, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे कैसे स्केल कर सकते हैं। फिर 2017-18 के बाद में हमने यूरोप के लिए शुरुआत की, जहाँ पर पे बहुत कुछ सीखने पड़ा। पहले हमको समझना था, कुछ लोगों ने हमारे साथ में गलत किया, लेकिन वहाँ से हमने अपनी जर्नी आगे लेकर के गए। शुरुआत के अंदर में आपका लॉकडाउन का पीरियड सबने देखा है, उस पीरियड के अंदर में हम ट्रैवल एजेंट्स बस बैठ करके दिन गिन रहे थे। फिर 2022 जब हमको वापस मौका मिला, उस समय 2019-20 के हमारे पास में 1200 कस्टमर्स थे जिनका वीज़ा आ चुका था, लेकिन वो जा नहीं सके क्योंकि मार्च में बंद हुआ। मार्च के बाद में ही पूरा समर शुरू होता है। वो 1200 कस्टमर्स हमारे साथ में वेट किए। उन्होंने बोला, सुशील जब आप जिस दिन शुरू करोगे हम आपके साथ में जाएंगे। हमने फिर से रीअप्लाई किया वीज़ा, कुछ लोगों का आया, कुछ का कैंसिल हुआ। फर्स्ट ईयर में 50% रिजेक्शंस हो रहे थे। यूरोप के अंदर में अवेलेबिलिटी नहीं थी अपॉइंटमेंट्स की, क्योंकि स्टाफ नहीं था एम्बेसीज के पास में। तो वो लड़ते झगड़ते हमने किसी तरह से 2022 के अंदर में उसको शुरुआत कर दी वापस। 2022 से 23 वी ग्रू अप ऑलमोस्ट अराउंड 300%। फिर 23 से 24 में हमारी ग्रोथ थी और डबल। आज हर साल यूरोप के लिए कम से कम भी 3 से 4 हज़ार कस्टमर्स हम लोग लेकर के जाते हैं। बाकी डेस्टिनेशन है जापान, अभी जैसे 3 साल से हम कर रहे हैं। जापान की जो डिमांड है बेइंतहा, मतलब इट्स अ कम्प्लीटली न्यू डेस्टिनेशन, वेरी वंडरफुल, डिफरेंट फ्रॉम ऑल। ये जो कल्चर है वहाँ का, जो साइट सीइंग है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल। वियतनाम आप लोग ने सबने देखा है, इतना हाई रेंज में है, मतलब डिमांड लोगों को कि भाई चलो 7-8 दिन के लिए लाख रुपए के अंदर में खर्चे में जाके आ सकते हैं, इससे बढ़िया सुंदर नहीं मिलता है। लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ का खाना इतना अच्छा है, पीपल एन्जॉय, दे गेट वर्थ फॉर मनी। आज हम यहाँ पे शिमला मनाली जाके आते हैं, 50-60 हज़ार रुपया एक आदमी का मिनिमम लग जाता है फ्लाइट के साथ में। यहाँ पर पे आपका इंटरनेशनल फ़्लाइट, वहाँ पर पे इंटरनल 2 फ्लाइट, फिर उसके बाद में 4 स्टार होटल्स, क्रूज़, एवरीथिंग मिला करके आपको 90,000, 95,000, 7 दिन का पैकेज। इट्स वंडरफुल। तो 2023 में हमने टर्की, वियतनाम, ये कई डेस्टिनेशंस इंट्रोड्यूस की। आज तकरीबन 40 डेस्टिनेशंस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैंने बताया, हमारा बेसिकली फोकस है फिक्स डिपार्चर्स के ऊपर पे। कंटिन्यूस हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, एनी टाइम ऑफ द ईयर, जब भी आपके पास में 2 कस्टमर है, 4 कस्टमर है, आपके लिए रेडी पैकेज अवेलेबल है। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अभी मैं इसका कोटेशन किससे मंगाऊं, क्या कॉस्टिंग आएगी। आपके पास में फिक्स डिपार्चर्स, गारंटीड डिपार्चर्स ऑलरेडी एनी टाइम एग्जिस्टिंग है। अगर आप हमारा बुक देखेंगे, येलो बुक के अंदर में हमने जो ट्रैवल एजेंट का कमीशंस रखा है, बहुत, अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे आपको समझ में आएगा कि कितना हाई है इसके अंदर में, ताकि आपकी मेहनत का आपका जो बेनिफिट है वो आपको पूरी तरह से मिले इसके अंदर। आज दिन तक जो ट्रैवलर्स है पैन इंडिया, हम लोगों के 358 सिटीज़ से गेस्ट हैं जो ट्रैवल कर चुके हैं। बॉम्बे में बैठ करके हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें ऐसा कस्टमर नहीं हो जिसने हमारे साथ ट्रैवल नहीं किया। आसाम, मेघालय, मिज़ोरम से लेकर के कच्छ, गुजरात तक, लेह लद्दाख से लेकर के त्रिवेंद्रम तक, हर सिटी, हर स्टेट के अंदर में कस्टमर है जो हमारे साथ यूरोप या इंटरनेशनल टूर करके आया है। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारी टीम ने निकाली है। पूना की पॉपुलेशन ग्रोथ है
और जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ये पुणे एयरपोर्ट का जो ग्रोथ है, पुणे का 9.5 मिलियन तकरीबन 95 lakhs पॉपुलेशन पब्लिक पुणे एयरपोर्ट से फ्लाई कर चुकी है लास्ट 24 के अंदर में। अब ये खाली देखिए, जो 1 लाख से 95 lakhs, 1 मिलियन सॉरी, तकरीबन 9 लाख से 95 लाख, 10 टाइम्स की ग्रोथ। आप लोग भी यहाँ पर पे है, आप लोग भी देखते हैं ये चीज़ के अंदर में। बट जब हम लोग स्टडी करते हैं पूना क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो लोकल्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, जो दूसरे शहरों से आकर के बसे, सब लोग यहाँ पर पे पूना दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ। पूना एक अच्छी ड्रीम सिटी है, क्लाइमेट वाइज, फूड वाइज, लोगों को मतलब बाकी हेजल्स नहीं होती है। अभी थोड़ा ट्रैफिक का एक चल रहा है पूना का, बट आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो वेरी क्विकली सॉल्व्ड। तो पूना के अंदर में जितना लेवल का बिजनेस पोटेंशियल है बहुत बहुत हाई है। ये हमारे पास में पैकेज वाइज डिमांड आती है 2022 में, अगर आप देखेंगे यूरोप अदर्स, जापान, फन यूरोप हमारा जो सेक्टर है वो है बुदापेस्ट, प्राग, वियना, क्रोएशिया, ग्रीस का। तो वो एक अलग जोन है। जो लोगों ने पेरिस स्विस वगैरह घुमा हुआ है तो उनके लिए वो एक नई डेस्टिनेशन हो जाती है। स्कैंडिनेविया है, लंदन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड वगैरह है। न्यू डेस्टिनेशंस हैं जो नॉर्मल हर एक कोई नहीं ऑफर करता है, मिडिल ट्रैवल एजेंसी या मिडिल कंपनीज। ये है जो बॉम्बे से फ्लाइंग का डेटा है। बॉम्बे से आज की तारीख में तकरीबन 5 लाख लोग रोज फ्लाई करते हैं, इन एंड आउट मिला करके। 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ पीपल फ्लाई एवरी मंथ आउट और इन मुंबई। दिस इज द वॉल्यूम्स विच हैज़ बीन ग्रोइंग। हम लोग सब पढ़ रहे हैं, सब लोग सुनते हैं कि इंडिया बहुत बढ़ रहा है, इंडिया ग्रो हो रहा है। बट अगर ये जो नंबर्स अगर आप लोग देखोगे, इसमें आपको समझ में आएगा कोई फ़्लाइट खाली नहीं है, किसी फ़्लाइट में सीट अवेलेबल नहीं है। हर एक फ़्लाइट के अंदर में ऑफलोड करती है एयरलाइंस। जो एक्स्ट्रा पैसेंजर बुक 180 सीट पे 195 सीट बुक करके चलती है, वो 15 लोगों को ऑफलोड करके 90% फ़्लाइट्स फुल जाती है। आज ये जो नंबर्स है इनका मतलब क्या है हमारे लिए? ये वीज़ा डेटा है, शेंगेन वीज़ा जो यूरोप का था, तकरीबन 10 लाख लोगों का शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन हो करके उसमें अराउंड 3.5% का अगर टोटल एवरेज देखते हैं तो रिफ्यूज़ल के बाद में आपका 95-96% अप्रूवल हो रहा है। यूरोप कंट्रीज़ आर वेलकमिंग इंडियंस। एक समय था वो सोचते नहीं थे इंडियंस के लिए कि भाई यस ये इतनी हिम्मत रखते हैं, इतना पैसा रखते हैं आके खर्चा करने का, बट अभी उनको समझ में आ गया है यस वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू देयर टूरिज्म बिजनेस। सो ठीक है, अभी ये जो इवेंट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारा करने का एक मेन उद्देश्य क्या था। आज आप लोगों ने देखा है मार्केटिंग कैसे होती है ऑनलाइन सोशल मीडियाज़ के ऊपर पे। अगर हम सब लोग अपना अपना सोशल मीडिया से मार्केटिंग करेंगे, कितना खर्चा लगेगा? बहुत, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट चीपर। अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देने जाओगे आपका तो इट इज़ कॉस्टली। किस तरीके से आप लोग मार्केटिंग करोगे फिर? आपका अगर बिजनेस आपको डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो आप लोग मार्केटिंग करोगे कैसे? मार्केटिंग अगर कर दिया आपने, महीने का 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा कर दिया, उसके बाद में जब बिजनेस जनरेट होता है आपके पास में, अगर एक ग्रुप आप लेके जाओगे तो आपके लिए कंपटीशन में कॉस्टिंग बरोबर बैठ जाएगी। आप भी होटल्स बुक करोगे, आप कोचेस बुक करोगे, फ्लाइट करोगे। लेकिन अगर आपके पास में 4 कस्टमर हुए, 6 कस्टमर हुए, तो आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे उसको? प्राइवेट टूर करोगे तो उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 30-40% इंक्रीज हो जाता है। एम आई राइट? प्लस कंपटीशन जो आपके पास में यहाँ पर पे आपका बिजनेस लेके जा रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं आपके पास में टिकटिंग के लिए आ गए, होटल्स के लिए आ गए, या अगर कोई बड़ा ग्रुप है नेगोशिएट करने के लिए तो आ गए। मेजर बिजनेस कहाँ जा रहा है आपका?
कुछ चंद कंपनियों के पास में, आई डोंट टेक द नेम्स, बट क्या हो रहा है, आपका वो कस्टमर के माइंडसेट में है कि बस वहाँ पर पे जाएंगे, वहाँ से वो बिजनेस मिल जाएगा। आपके पास में वो पैकेज मिलेगा, उनको कंफर्म नहीं है। आपके पास में इतनी वैरायटी ऑफ पैकेजेस मिलेंगे क्या, वो उनको गारंटी नहीं है। तो अगर आप लोग को अपने आप को सशक्त करना है तो आप कैसे करोगे? आप अगर आपके कस्टमर्स को दिखाना चाहते हो कि मेरे पास में ये 50 पैकेजेस है, एवरी टाइम अवेलेबल, फुल पैकेज है, फुल प्राइसिंग गारंटी है, फुल एग्जीक्यूशन गारंटी है, आपको पूरा मन में शांति है कि यस मेरा कस्टमर गया वहाँ पर पे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। गेस्ट वापस आपके पास में ही आएगा शुक्रिया करने के लिए कि यस आपने बहुत अच्छा पैकेज करवा के। उनको कोई मतलब नहीं है कहाँ से लिया आपने, किससे लिया। वो क्या देखता है, आपको जानता है, आपके साथ में 10 साल से 20 साल से आपका संबंध है। उनके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, आप हो। और आपके पास में अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो उसके लिए फर्स्ट चॉइस आप है। हम लोग जो यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि हम अगर जुड़ करके आपके पास में, हम आपको एक बैकएंड सपोर्ट पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेज, प्राइसिंग, मार्केटिंग, पूरा एग्जीक्यूशन वहाँ पर पे, और आप जो फ्रंट एंड के अंदर में आपका जो कस्टमर संभाल रहे हैं, आप उसको पूरा हर तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। कस्टमर आपका, उसको कोई भी पैकेज लेना हो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास में वो पैकेज मिलेगा। आप ये बुक देखेंगे, इसके अंदर में मतलब और कई पैकेजेस हैं जिसमें इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन ये पैकेज वो जो आज की डिमांड में है, आपके पास में रोज़ इंक्वायरी आती होगी, आप उनको बोलते हैं हाँ ठीक है मैं करवा करके देता हूँ या अरेंज करता हूँ, नहीं हो पाता है। मेरा बोलना यही है केवल कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सीरियस थॉट दीजिए, आप अपनी मार्केटिंग कीजिए, आपको मार्केटिंग सपोर्ट हम दे देंगे पूरा। आपके पास में फ्लायर्स आ जाएंगे, आपके पास में पैम्पलेट्स आ जाएगी, जो एट ज़ीरो कॉस्ट यू विल गेट दैम, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल नहीं, वी डोंट पब्लिश आवर नेम्स ऑन दैट। हाँ नहीं, वो न्यूट्रल फ्लायर्स होंगे, आपका उसमें आप लोगो ऐड कर सकते हो, आपका नाम उसमें ऐड कर सकते हो, आपका नंबर, आपका उसमें डिटेल्स सब रहेगी पूरी। कस्टमर को आपको जिस तरीके से हैंडल करना है आप कर सकते हो उसके अंदर में। उनको आपने अगर गारंटी के साथ में, अच्छे प्राइसिंग के साथ में, विथ योर मार्जिन, ऐसा भी नहीं है कि आप यूरोप टूर कर रहे हो और 2000 रुपये की कमीशन मिल रही है, देयर इज़ नो फन डूइंग दैट। लेकिन हाँ, हर पैसेंजर के पीछे आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, यू विल ऑल्सो फील दैट यस आई कैन डू। महीने में अगर 5 कस्टमर भी हो गए आपके, तो खाली यूरोप से लाख रुपया हो गया। अभी 5 कस्टमर के लिए बाकी आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज establish a partnership where you benefit, we benefit, the customer benefits. These are the destinations which we are operating. यूरोप में पूरा पेरिस, स्विस, एम्स्टर्डम, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, क्रोएशिया, ग्रीस, देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, पूरा कंप्लीट यूरोप के अंदर में जो इन डिमांड पैकेजेस है, दीज आर कवर्ड। देन सेंट्रल यूरोप, लंदन, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग वगैरह है, पूरा आयरलैंड के साथ में है वहाँ पे, स्कैंडिनेविया कंट्रीज बताया, जापान एंड कोरिया। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हर एक जगह से जो लोगों ने यूरोप घूम लिया है या जो दूसरे डेस्टिनेशन घूम लिया है, तो दे आर विलिंग टू गो टू जापान टू जस्ट एक्सप्लोर है क्या चीज़। जापान इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर वहाँ का, वो पूरा उसके अंदर में। तो आपके पास में जापान भी है, जापान के साथ में हमारा कोरिया का पैकेज भी है। 2 पैकेजेस है, 8 डेज़ का है और दूसरा एक 12 डेज़ का है जिसके अंदर में जा सकते हैं। देन वी हैव सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दुबई, बाकू, जॉर्जिया, टर्की। वी हैव ईस्टर्न कंट्रीज, वियतनाम, बाली, मलेशिया, and all time favorite domestic packages for you. ऑफ बीट का जैसे कि हमने बताया आपको, मैम हमारी कंपनी स्पेशलाइज करती है ग्रुप टूर्स के अंदर में। ऑफ बीट में वो ग्रुप्स नहीं बन पाते। वी आर लुकिंग एट पैकेजेस विच आर मच इन डिमांड, विच पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड।
और मोर और लेस हमने 70 to 80% कवरेज कर रखी है। कुछ होते हैं जो मतलब एकदम ही अलग तरीके से अलग डेस्टिनेशन निकाल करके जाते हैं, उसके अंदर में दे आर नेवर अवर कस्टमर्स, तो हम उसके पीछे वर्किंग ही नहीं कर पाते उसके अंदर में। One more question I have. जी। In Bombay, you know that there is one above. They are very much specialized for Baku. The reason being they are getting very good rates from the airline, Azerbaijan. No other travel agent is getting the same good rate like they get. एक बार आप हमारे प्राइस मैच करके देखिए। So I'm asking, you match the same price? You can check it out. Because they are having 5-star hotel at the rate of 4 star. हम 5 स्टार नहीं करते हैं, वी डू ओनली 4 स्टार इन बाकू और जॉर्जिया। हाँ, 3 स्टार वहाँ के नहीं अच्छे हैं, वही 4 स्टार ही कैटेगरी रखते हैं वहाँ पे। May I ask you one question? Your Baku package for a couple, how much does it cost for the 65,000 से शुरू होता है पर पर्सन का, तो 1,30,000 के आसपास वो रहता है 5 डेज का। Right now we had a group for Rotary, 90 people. They gave us 50,000 all 4-star hotel, 6 nights 7 days. सी हर एक का पीरियड है, सीज़न, ऑफ सीज़न है, मेन सीज़न है, पिक सीज़न है। फ्लाइट प्राइजेस 22,000 से लेके 45,000 तक चल रही है। और कितना पहले, ये जो छोटी डेस्टिनेशन है इसमें प्राइजेस, आज बॉम्बे श्रीनगर का प्राइस आज 18,000 में फ़्लाइट मिल रही है, एक महीने बाद में वो 50,000 में भी नहीं मिलेगी, जैसे अभी प्रयागराज में हुआ, आप लोगों ने देखा। हाई मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट, एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल इश्यूज, FIT, हायर कॉस्ट एंड कंपटीशन, इसको कैसे एड्रेस करना है हमने डिस्कस किया अभी। वी प्रोवाइड यू कंप्लीट ईयर राउंड रेगुलर ग्रुप्स, competitive pricing, good commissions, good support of all facility, whether it's visa, whether it's ticketing, whether it's hotel, or even discussing with your customer. अभी अगर आप समझो आपके साथ में एक कस्टमर बैठा है आपका, उसको अगर पूरा यूरोप के बारे में जानना है, पैकेज के बारे में, आपके पास में है इंफॉर्मेशन, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप ये खाली बोल सकते हो कि मेरे जो हैंडल करते हैं मैं उनसे आपको बात कराता हूँ। कॉन्फ्रेंस पे भी आप बात करा सकते हो, या आपके ऑफिस से वो स्टाफ को, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग यू, दे विल बी टॉकिंग टू द कस्टमर ऑन योर बिहाफ। तो आपके पास में ट्रेन स्टाफ, ऑटोमेटिक ट्रेन स्टाफ एनी टाइम अवेलेबल है। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मुझे इतना हायरिंग करके, इतना पढ़ा लिखा, इतना शिक्षित या उसका टूर के बारे में जानने वाला व्यक्ति अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होगी आपके लिए। जैसा कि हमने बताया, वाइट लेबल टूर्स, आपके पास में 20, 25, 40 जन का ग्रुप है, उसको आप अपना प्राइवेट लेवल से भी बना करके ले जा सकते हो, तो आपको उसमें कहीं पे कोई मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्राइसिंग उसमें कर सकते हो, आपको अपना मार्जिन उसमें सेट कर सकते हो। हम आपको एक फिक्स प्राइस पे दे देते हैं, उसके ऊपर पे आप आपका 25,000 रखो, 50,000 रुपये मार्जिन रखो, उसमें कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरे पैकेज जिसमें मिक्स होता है उसमें कारण क्या होता है कि वो 40 जन की कोच है, अगर एक जन ने 2 लाख में पैकेज लिया है आपसे और उसने दूसरे ने जो है उसका पैकेज 2,25,000 में लिया, वो आपस में बात तो करेंगे, फिर वो क्या बोलेगा, वो एजेंट ने हमको चीट किया, उसने ज़्यादा पैसा ले लिया हमारे से। तो वी ट्राई टू कीप द प्राइस सेम, बट उसमें आपका मार्जिन सिक्योर्ड है। ये भी नहीं है कि आपको मार्जिन भी नहीं मिल रहा है, आपका प्राइस भी सिक्योर है, आपका कस्टमर्स भी सिक्योर है। आपको कस्टमर वापस आके ये नहीं बोलेगा कि मेरे साथ में धोखा हुआ किसी भी प्रकार से। ओके, रिलेटेड टू ऑल दिस डिस्कशन, अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। One more question I have. Like some travel agents I have seen, whichever destination they promote, so they have set number of clients, and when they get 20 people, they give a presentation very beautifully. Like each destination, for an example, you are taking to Spain, Portugal. Yes. So they will tell you what is Barcelona, the map, the everything, what are the places, sightseeing. Yeah, we have sample videos. You also have the same Yeah, we have sample videos of each destination, each group, which you can share with your guest
दे कैन अंडरस्टैंड, उनका कुछ क्वेरी भी होता है तो दैट कैन बी आंसर्ड फॉर My दैट. question is, before suppose we are going your packages from Pune, we need to get the proper information, proper knowledge. एब्सोल्युटली, आपको हर मिनट की एक MTM आइटनरी बोलते हैं हम लोग, मिनट टू मिनट, एवरी डे. सुबह 8:30 बजे उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, 9 बजे निकलेंगे, फर्स्ट साइट सीइंग जाएंगे, 20 मिनट का ट्रैवल होगा, वहाँ पर साइट सीइंग पे 2 घंटे का टाइम लगेगा, फिर क्या करेंगे. ईच एंड एवरी थिंग इज डिटेल्ड, कंप्लीट. Okay. Now, the person who is selling your product, that person should be needed very, very deep knowledge, Yes. not the superficial knowledge. We so we how conduct do you train those we conduct online training sessions for all our travel partners on a regular basis. So you can attend that and you can get that knowledge information. Thank you. If I am selling anything and if the passengers comes to you directly, did you give the same commission to them? No. How you will get to know he is not travel agent, he is only passenger? The prices are same. जो हम आपको, आप भी जो सेल कर रहे हो, हम भी वही प्राइस उनको कोट करते हैं. आपका और हमारा जो मार्जिन है वो हमारे बीच में ही है, वो एजेंट कस्टमर के लिए नहीं है. ओके, उसमें भी करते हैं ट्रैवल एजेंट एकदम फिक्स चलते हैं. हमारे पास में ये फ़र्क नहीं है कहीं पर भी. ओके, भले मैं 1 बेचूं या 100 बेचूं कि हाँ नहीं, उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, पैकेजेस के बाद में बेनिफिट्स मिलते हैं. आपका एनुअल टर्नओवर के ऊपर पे आपको बेनिफिट मिलता है. आपने 25 lakhs किया, 50 lakhs का बिजनेस किया तो योर मार्जिन कीप्स इंक्रीजिंग. एडिशनल बोनस के तौर पे, जैसे टर्नओवर बोनस. और फैम भी करवाते हैं. फैम टूर्स वी प्रोवाइड आफ्टर अ सर्टन फेज, मतलब आपका बिजनेस होने के बाद में एक पर्टिकुलर लेवल, आफ्टर दैट वी डेफिनेटली प्रोवाइड यू. नीड है तब. यस. Sir, I wanted to ask that are you giving franchises of IPO in LPO. Pune? LPO, sorry. Let's plan our holidays. LPO stands for Let's Plan Our Holidays. हम जैसे आपस में बात करते हैं कि चलो अपना छुट्टी प्लान करते हैं, वैसे ही उसको इंग्लिश में हमने कन्वर्ट किया, लेट्स प्लान आवर हॉलीडेज़. इसका कोई ज़्यादा ये नहीं है टेक्निकल, बट एक सिंपल लैंग्वेज है. फ्रेंचाइज या वो मॉडल बेसिकली कुछ सिटीज़ के अंदर में है हमारा, जहाँ पर पे हम लोग इसको PSP एजेंट्स बनाते हैं. हमारे पास में जैसे कुछ इंक्वायरीज आती है तो वो PSP एजेंट्स को फॉरवर्ड कर दी जाती है. कस्टमर को हम जैसे पूना से, तो वो पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से है, वो बोलता है ऑन से है, तो ऑन में जो हमारा PSP है हम उसके पास में भेज देते हैं. बाकी जो आप लोग अपनी इंक्वायरीज जनरेट करते हैं, बिजनेस जनरेट करते हैं, वो आपके पास में आता है. Okay. सो प्लीज़ फील फ्री, आराम से, मन से. जी सर, PSP कितने हो गए पुणे में? एक एक जियोग्राफिकली हम लोग डिसाइड करते हैं. जैसे पॉपुलेशन है, उसका एरिया सरकमफ्रेंस है, उसके हिसाब से. LPO की बात कर रहा हूँ. अभी हमारे 140 PSPs है पैन इंडिया. पुणे, क्योंकि मैं पुणे में एक है हमारे मिस्टर हिरेन जी. हिरेन सर नमस्कार. आप हैं, आपने कम से कम भी मुझे लगता नहीं है 2 करोड़ से कम का बिजनेस कर लिया होगा अभी तक. तो हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं. हाँ बिल्कुल. वो एरिया कहाँ पे है, आपका कौन सा लोकेशन है, वो टीम एक बार देख करके डिसाइड कर देगी. जी बिल्कुल बिल्कुल. यस सर. प्लीज़, आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल. आपके मन में कुछ ना कुछ तो प्लान चल रहा होगा, कुछ सोच रहे होंगे. अगर आपको आज नहीं आ रहा है, कल भी क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर में. चारू है यहाँ पे आपके पास में, जो इनवाइट आया है, आप उसके ऊपर पे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं. आपको कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी प्रश्न हो, आप पूछ सकते हो. हमारे पास में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. हेलो सर. जी मेरा वीज़ा है US का, और आप US कर सकते हैं.
यूएस का वीज़ा मैं आपको गाइड कर दूंगा। नहीं, मेरा पास है एक्चुअली। हाँ, ओके। मुझे यूएस जाना का है बस। टूर अभी मेरे पास में कम से कम भी 100 से ज़्यादा लोग हैं जो यूएस का टूर मांग रहे हैं। अच्छा। बट हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि अगर यूएस की वीज़ा की पोजीशन सुधर जाए एप्लीकेशंस अपॉइंटमेंट्स की। बट यस, डेफिनेटली आई विल ऑर्गेनाइज वन टूर फॉर यूएसए बिकॉज बहुत डिमांड में है। लास्ट 3 साल से हमारे गेस्ट वेट कर रहे हैं कि एलपीओ आप कब ऑर्गेनाइज करोगे, तो आपके साथ में हम जाएंगे। पूरा ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट 13 डेज का पैकेज है, तो आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट। मेरे पास है लेकिन खत्म होने वाला है 28 को, उससे पहले मैं उसके पहले आपको करवा दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद देता हूं मैं आप लोगों का सबका फिर से एक बार। प्लीज़ आप लोगों के लिए कुछ व्यंजन का इंतज़ाम है, करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।